heard about JP Morgan and these Goldman Sachs and all. So they also hire. So it's a useful skill in general because you can yourself invest also, or you can get a job also through this. So so these are the things we're gonna study today. First is introduction. Second is different steps. Third is related to fundamental analysis, because equity research and fundamental analysis have a lot of in common, because fundamental analysis is a very good approach for researching about stocks. So we start with qualitative, means where we do not study numbers but we study businesses, and quantitative where we study numbers more. This is also important thing. A little we will see building equity research reports. So on the internet you can get these research reports. Some are paid very high value. Some are free also. So there are analysts who make these reports. So we're not gonna go into very much detail about that, but we will gonna see that how these reports are made, how stock recommendation and stock picking is done. So there are two approaches in stock picking: top down and bottom up. Top down means we approach the overall economy, then we come to sectors and all. So for example, top down approach example will be, for example, we study global economy, in which we study, okay, India is the fastest growing economy, so we will invest in India. In India, there are some sectors. For example, financial services is a very good sector. So in financial services, we will narrow down to exact sector. So we will see, okay, capital markets is doing very good. So if capital market is doing good, do we have some proxy that can act as proxy for my capital market? That means if capital market does good, so which stocks will benefit? So for example, you thought about, okay, CDSL is one stock which is depository, like for storing money we have bank accounts, for storing stocks we have demat accounts. So CDSL makes and maintains the demat accounts. So we come out to a specific stock. This is called top down stock picking. Bottom up is you start from a stock. So for example, an example for stock you want to give? Okay, so I will take example. Like for example, you take example of Britannia. Okay, so you will research about Britannia, that how much revenue it does, how much profit it generates. Then you will go to the sector, then to the industry, and then to the economy. So it is a reverse process. This is called bottom up. Actually, bottom up is a little simpler than top down, because top down you have to read a lot and you have to know knowledge of economics also for that. Then is industry analysis, how different industries. So in India, we don't have all the industries, but we have major, like what we have. We have technology, IT. We have banking and financial services. We have insurance. Then we have FMCG. Then we have consumer durables. Then we have automobiles. Then we have auto components, OEMs. Then we have energy, power sector in general, in which we have green energy. Then power transmitters and power producers. So a whole of them. Then there are industry players, industry manufacturers. Then there are capital goods, and so on. Many industries are there. So how do you analyze industry? We will take an example from pharma industry, because this is a science institute, so this will be more relevant. We can also take example from chemical sector also, because that will be also more relevant for us. Then we will see what are different business models. One case study of DMart we will do, and we will see overview of what are financial statements. So we start with what is equity research. So as I told you, it is you take publicly traded companies in the stock market. So for example, Reliance Industries is a publicly traded company. You study its financial performance, its past, its present, its future. So because only future if you can predict, then only you can make money or do good. So so what is the importance of equity research? Because it provides such knowledge about what a company is doing, what is the company's financial health, what are the risks and opportunities for a company. So for example, If we only are three and we are going to lavender, we what can what? do it. We only are three and you are not recording so formally. We can do it some informally. Okay. So you will. In between, Can we do in Hindi then? in any way, like it's with communicating it in between. Okay. ठीक है. And going through such a formal way,
just make it little interesting and just tell us what actually for us there. ठीक है Okay. So- Is it okay with two of you? Yes, है ना? yes. चलेगा ना? चलेगा। कि हम भी इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे भी सुनते हैं। हाँ क्योंकि तीन ही हैं, अच्छे से बात करते हैं, सीखते हैं, ठीक है? तो So- we'll relax and बता ठीक है। दीजिए। सो जैसे कि इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस बेसिकली ये है कि हम अगर ये स्टडी कर लें अगर कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है, हम उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे, वो बढ़ जाएंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। सो बेसिकली अब वही बेसिकली हमारा काम है कि हमें कौन सी कंपनी पकड़नी है। तो जैसे कि किसी ने वो खेला है क्या, वो जो वो होता है हॉर्स रेसिंग गेम होता है, जो उसमें मतलब सट्टा लगाते हैं, सट्टा वाला गेम होता है। उसमें बेसिकली ट्रेसी करके गेम होता है, उसमें मतलब कसिनो टाइप में। कसिनो अगर कभी जाओगे, मैं गया हूँ एक बार, मैंने देखा था। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग हॉर्स की रेस चल रही होती है और हम हॉर्स के ऊपर पैसा लगाते हैं। तो बेसिकली ये इसमें सेइंग होती है कि वी डू नॉट बैट ऑन द हॉर्सेज, वी बैट ऑन द जॉकी। जॉकी जो घोड़ा चलाता है उस पर हम बैट करते हैं। तो जॉकी इज मैनेजमेंट, सो वी ऑल्सो स्टडी दैट विच मैनेजमेंट इज गुड। So this is a job you can do, which is job of analyst. So these analysts basically do what we are going to study. These analysts do exactly on a daily basis. So for example, if you become analyst, आप बन जाते हो। For example, किसी कंपनी में आप बन गए, गोल्डमैन सैक में एनालिस्ट बन गए। सो आपका मेनली ये काम होगा कि जैसे आपको एक कंपनी दे दी जाएगी, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, तो आपका दिन रात आपका एक ही काम होगा कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूरा पढ़ते रहो, क्या क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, इकोनॉमी में क्या हो सकता है, उससे कंपनी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली जितना कंपनी के मैनेजमेंट को पता होता है, सी ओ को, उतना ही आपको पता चल जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको काफ़ी अंदर की चीज़ें पता चल जाती हैं इसके थ्रू। ये कुछ इस तरह क्या, मतलब जैसे कि ब्रिटानिया का तुम सेक्टर ले रहे हो, तो ये कुछ इस तरह इकोनॉमी से इस तरह से कनेक्टेड होता है, लाइक उनके रॉ मटेरियल्स की वैल्यू क्या है, हर एक चीज़ स्टडी करते हैं कि पहले हम देखेंगे ब्रिटानिया क्या क्या बिजनेस करती है। तो हम देखेंगे कि ये बेकरी बिजनेस में है, ये बिस्किट्स बनाती है, फिर ये वाला चीज़ भी FMCG कुछ चीज़ और भी बनाती है, ये भी बनाती है। अलग अलग प्रोडक्ट्स देखेंगे, फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स में किस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन होता है, कितना उसमें रॉ मटेरियल लगता है, क्या होता है, क्या सप्लाई चेन है पूरी, और इसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं। तो पार्ले इसका कॉम्पिटिटर है, या फिर जो भी इसके कॉम्पिटिटर है, हम कॉम्पिटिटर का देखते हैं। फिर इकोनॉमी में क्या चल रहा है कि अब ये कंज्यूमर्स का क्या कहते हैं, कंजम्पशन कब पड़ता है कि पहले लोग पार्ले जी खाते थे, पार्ले जी से लोग थोड़े महंगे बिस्किट्स में आ रहे हैं। तो ब्रिटानिया थोड़ा महंगा बिस्किट बनाता है, इन जनरल सस्ती बनाता है, महंगी बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रीमियमाइजेशन, कि जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो लोग थोड़े महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। शुरुआत में लोग शाओमी के मोबाइल्स खरीदते थे, अब लोग सैमसंग और एप्पल की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो ये प्रीमियमाइजेशन हो रहा है कि प्रोडक्ट सेम ही है, मतलब बट लोग ज़्यादा महंगा, ज़्यादा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि अच्छा, तो पार्ले से मार्केट शेयर ब्रिटानिया की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ हो रही है कि लोग प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मिडिल क्लास बढ़ रही है इंडिया की, या फिर जो एफ्लुएंट सेक्शन है वो बढ़ रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी, अब ये तो चलो हवा की बातें हो गई, हवा वाली बातें कि ये। फिर हम एक्चुअल नंबर्स देखते हैं। नंबर्स का मतलब हम बेसिकली कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, मतलब कि इनकी कितनी सेल्स है, कितना प्रॉफिट है, कि किस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट किया, कितना मार्जिन किया। तो उससे हम फ्यूचर का एस्टिमेशन करते हैं। बेसिकली इक्विटी रिसर्च का मतलब ये है कि हम फ्यूचर के बारे में क्या प्रोडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट तो सबको पता है, प्रेजेंट भी सबको पता है, बट जो फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन कर सकता है वही हमें करना है बेसिकली। बट फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन करने के लिए बारे में हमें पास्ट में पता होना चाहिए, प्रेजेंट भी पता होना चाहिए, तभी हम कुछ फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा हम ये सब देखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स हो रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि आजकल ये घर, मतलब काफ़ी सारी जो ये होती है रियल एस्टेट में स्टील पाइप्स का बहुत यूज़ हो रहा है, पहले नहीं होता था, और कई सारी इंडस्ट्री में स्टील पाइप्स बहुत यूज़ हो रही है। तो ये एक इंडस्ट्री शिफ्ट है कि लोग स्टील पाइप्स की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से पहले सस्ती प्लास्टिक की पाइप्स आती थी उसमें पानी के लिए, अब क्या ट्रेंड बन गया है कि लोग PVC पाइप्स खरीद रहे हैं। तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं एस्ट्रल और प्रिंस, जो कि PVC पाइप्स बनाती हैं। तो PVC पाइप्स क्या होती है, ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, ये लीकेज इसमें नहीं होती और थोड़ी महंगी होती हैं। बट ये इस तरीके से हम सोचते हैं कि ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में ट्रेंड्स हैं। जैसे कि और इसके अलावा क्या ट्रेंड है कि लोग पहले हम राशन किराने वाले की दुकान से लेकर आते थे, अब क्या ट्रेंड बन रहा है कि लोग जेप्टो और इंस्टामार्ट पर ही खरीद लेते हैं। तो क्विक कॉमर्स एक इंडस्ट्री आ रही है। तो ये भी एक इंडस्ट्री चेंज है कि ऑल्दो ये सब काम तो सेम सेक्टर में कर रहे हैं, लेकिन उसमें इंडस्ट्री चेंज हो रही है किसी तरीके से। जैसे कि पहले ज्वेलरी लोग अनऑर्गेनाइज्ड एक पास के ज्वेलर से खरीदते थे, सोनार से खरीदते थे,
आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल ट्रेंड क्या है कि लोग जाते हैं तनिष्क में जाते हैं, कैरेट लेन में जाते हैं, वहाँ से आके ज्वेलरी लेकर आते हैं। सो इसको हम बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन, की इकोनॉमी जो है ये इनफॉर्मल सेक्टर जो थे पहले वो ज़्यादा बूम करते थे, अब फॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम हर चीज़ जो है फॉर्मल प्लेयर से ले रहे हैं। फॉर्मल प्लेयर मतलब जो ढंग से अपना टैक्स वैक्स भरते हैं, जीएसटी वेस्टी, और ढंग से कंपनी बना के करते हैं। इनफॉर्मल हमारा जो नॉर्मल जो हमारी जो दुकानें रहती हैं हमारी छोटी मोटी, और जो स्ट्रीट सेक्टर जो रहता है वो इनफॉर्मल सेक्टर रहता है। तो ये इंडिया में ये भी एक इंडस्ट्री शिफ्ट है कि ज़्यादातर चीज़ें इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है, मार्केट शेयर हो रहा है। तो बस यही है, बस बेसिकली हम कंपनीज का बेसिकली एक तरीके से कुंडली बनाते हैं हम कि कंपनी क्या करती है वगैरह वगैरह। रियल एस्टेट में भी ऐसा फॉर्मल से हाँ बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि एक प्लॉट जो डेवलपर होते थे वो बड़ी ज़मीन खरीदते थे, उसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करके सड़क वड़क बना दी और फिर उसमें प्लॉट्स बना दिए। मेरे ताऊ जी से एग्जैक्टली ये काम करते हैं मेरे शहर में, प्लॉट्स बना दिए, प्लॉट्स बना के बेचते थे। अब क्या हो रहा है कि फॉर्मल जो है ये सब प्रेस्टीज हो गया या फिर आपका डीएलएफ हो गया, ये सब आ रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, ये बड़ी ज़मीन खरीदते हैं और ये फ्लैट्स बना देते हैं बड़े बड़े, और ये फ्लैट्स को इंडिविजुअली बेचते हैं। तो पहले प्लॉट्स बेचते थे, फ्लैट्स बेचते हैं, और ये भी बड़े बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं कि शोभा हो गया, प्रेस्टीज हो गया और डीएलएफ हो गया। तो ये भी शिफ्ट है, जैसे कि रियल एस्टेट में मैंने एग्जाम्पल दी। सो पहला स्टेप होता है कि हम जो है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। तो अब कैसे हम ढूंढते हैं, तो उसके लिए बेसिकली मेरे मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करना। पासवर्ड लगेगा। सो इसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स रहती हैं, जैसे कि सबसे फेमस वेबसाइट है वो है आपकी स्क्रीनर। तो तो जैसे कि ये वेबसाइट है स्क्रीनर। तो इसमें ये थोड़ा मैंने कस्टमाइज़ कर रखा है, आपको थोड़ा अलग भी दिखेगा, इसमें आपको इतने सारे रेशियोज में नहीं है। तो यहाँ पे ये कंपनी के बारे में बता दिया कि ये 1939 में बनी थी। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग करती है स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स का। तो ये सॉल्ट भी बनाती है वैसे, और भी कई सारी चीज़ें बनाती है। फिर आप और देख सकते हो बिज़नेस के बारे में कि ये नॉर्थ अमेरिका में भी है। ये सोडा ऐश बनाती है बेसिकली ग्लोबली। इसके अलावा ये बेसिक केमिस्ट्री में ये अपने कुछ बेसिक केमिकल्स बनाती है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, उनको अलग अलग, जैसे कि ग्लास बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, फार्मा इंडस्ट्रीज में, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। और की प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, जैसे कि सोडा ऐश है, सीमेंट बनाती है, अलग अलग, थोड़े बोरिंग कंपनी है बट ठीक है। और ये अलग अलग इसके रीजन्स में यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर आपने ये देख लिया। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे फिनेंशियल रेशियोज हैं इसके, कि इसका मार्केट कैप कितना है, इसका स्टॉक प्राइस कितना है, इसका बुक वैल्यू बेसिकली कंपनी की एसेट माइनस लायबिलिटी होती है। एक्चुअल जो वैल्यू होती है कंपनी की वो बुक वैल्यू होती है, और ये होती है मार्केट। ये तो बुक वैल्यू होगी स्टॉक की, ये हो गया करंट प्राइस यानी कि स्टॉक का प्राइस। ये हो गया, ये कुछ रेशियोज हैं, ROE, ये बेसिकली कंपनी की एफिशिएंसी बताते हैं। इसके अलावा ये हो गया EPS होता है अर्निंग पर शेयर। तो प्रॉफिट एक शेयर पर कितना प्रॉफिट होता है। अगर आपने 1000 रुपये का शेयर खरीदा तो उस पर एक शेयर पर प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट की लॉस है अल्टा 13.5 रुपये का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 10 रुपये, तो 10 रुपये का प्रॉफिट था, 1000 रुपये का स्टॉक था। तो ये प्रमोटर होल्डिंग है, ये डेट टू इक्विटी है, मतलब कि कितनी कर्जा है कंपनी के ऊपर। ये कैश बाई मार्केट कैप, जो कितना कैश है, अगर 100 रुपये मार्केट कैप है तो 2 रुपये कैश है। ये इसका मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये फ्री कैश फ्लो है कि सारे काम धंधे करने के बाद कंपनी घर पे कितना पैसा लेकर आती है, ये आपका फ्री कैश फ्लो होता है। ये अलग अलग रेशियो है। पैक रेशियो वैल्यूएशन करने के लिए यूज होता है, पी रेशियो पे वैल्यूएशन करने के लिए होता है। पी होता है प्राइस टू अर्निंग, पैक होता है प्राइस टू अर्निंग को ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिफरेंट, ये डिविडेंड यील्ड है कि अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो स्टॉक प्राइस का कितना परसेंट है, तो 1.4% है इस केस में। तो इस तरीके से हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये स्टॉक प्राइस का आपको चार्ट मिल जाता है इसमें। फिर हम ये कर सकते हैं कि ये कंपटीशन से एनालाइज कर सकते हैं कि टाटा केमिकल्स, पिडिलाइट, SRF,
गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, अलग अलग। तो जैसे कि पी अगर होना चाहिए, पी सेम इंडस्ट्री में जिसका कम है उतनी बेटर, मतलब उसकी वैल्यूशन कम है, आपको सस्ता शेयर मिल रहा है। तो अगर हम इसमें देखें, सबसे सस्ता शेयर है इसमें इसी दीपक नाइट्राइट, जिसका 45 है, और भी सस्ता है इसके अलावा ये कितना प्रॉफिट ग्रोथ या लॉस, मतलब कितना प्रॉफिट में डिफरेंस है। तो जैसे कि इसका 18% ग्रोथ है, इसका 33% कम हो गया प्रॉफिट लास्ट ईयर से, इसका 13, इसका -46, इसका 30 का। सबसे अच्छा इसमें लग रहा है गोदरेज इंडस्ट्री, इसका 81 नहीं, ये सॉरी बी एस, इसका 86 है। जो हम स्टडी कर रहे हैं टाटा केमिकल्स, इसका -45, यानी कि ये मतलब ख़राब चीज़ है, मतलब कि लास्ट अगर 100 रुपये था प्रॉफिट, इस साल 55 रुपीज़ प्रॉफिट है। ऐसे ही हम सेल्स का भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ किस में ज़्यादा है, मतलब जितनी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा है, कि बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जो भी हम कंपनी दे रहे हैं उसकी साल बाय साल वो ज़्यादा सेल्स करती रहे, ज़्यादा सामान बेचते रहे। तो सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है इसमें दीपक नाइट्राइट में। तो देखते हुए दीपक नाइट्राइट काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है, क्योंकि इसकी वैल्यूशन भी ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी इसमें है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी 35 है। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर। फिर ये है ROC और ROE, जो कि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ा रही है, जितने नंबर जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा जैसे कि ROC है इसका पिडिलाइट का, और ROE भी सबसे ज़्यादा हाँ पिडिलाइट का ही है। और दीपक नाइट्राइट इसका हम डिस्कशन कर रहे थे, इसका है 60 to 21, तो इसका भी डिसेंट है। तो देखने में ये स्टॉक का भी डिसेंट लग रहा है दीपक नाइट्राइट। तो हमने देखा कि और कंपैरिजन करके कि टाटा केमिकल से अच्छा स्टॉक है दीपक नाइट्राइट और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। फिर यहाँ पे हम रिजल्ट्स देख सकते हैं कि अलग अलग ईयर्स में, सॉरी अलग अलग क्वार्टर्स में क्या क्या रिजल्ट आए हैं, और देख सकते हैं क्या सेल्स बढ़ रही है क्या यहाँ से। जैसे कि इस कंपनी की 15% ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर, फिर 20%, 32%, 34%, 40%, फिर 26%। अब यहाँ तक अच्छा कर रही थी कंपनी। अब मुझे देखा कि अब सेल्स ग्रोथ जो है या नेगेटिव हो रही है, फिर बहुत कम हो रही है। तो यहाँ पर इस कंपनी का ख़राब समय शुरू हो गया। तो ये हमें क्वार्टरली रिजल्ट देख के समझ में आता है। फिर ये एक्सपेंसेस हटा के सेल्स में से हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज भी रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM। फिर बाकी कुछ खर्चे और इनकम्स भी होती हैं, उनको प्लस माइनस करके हमको नेट प्रॉफिट मिलता है कि फाइनली कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये इसका ये हमको यहाँ दिख रहा है 268, ये करोड़ में 268 करोड़, 350 करोड़ वगैरह 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 वगैरह, 194 यहाँ पे लॉस कर दिया कंपनी ने। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ तक अच्छा कर रही थी कंपनी, फिर दिसंबर 2023 के बाद से ख़राब हो गया कंपनी में। तो हमको पूरी समझ में आ गया कंपनी की, कंपनी का कितना मार्जिन है, कंपनी क्या करती है। बेसिकली यही इक्विटी रिसर्च जो हम अभी कर रहे हैं। इसमें जो ऊपर एक डेब्ट का इक्विटी रेशियो, तो क्या ऊपर वाले हाँ मैं सबसे लास्ट वाले शुरुआत में ना नहीं नीचे यही ना डेट नीचे हाँ उससे नीचे और चार्ट। अच्छा ओके नीचे सेम तो यार जब आ जाए बता देना ठीक है। हाँ वही लास्ट कॉलम इसके लास्ट वाला क्या है, डेब्ट का इक्विटी है ना, हाँ मतलब कर्जा। इक्विटी होती है जैसे कि इक्विटी शेयर्स मतलब स्टॉक। हाँ, नहीं मतलब वो अलग चीज़ है। इक्विटी में यहाँ पर मतलब जो है इक्विटी का मतलब यानी कि हुआ कर्जा। एसेट माइनस लायबिलिटी। ओके। जैसे कि आपकी इक्विटी हुई, अगर मैं आपकी इक्विटी निकालूँ, आपका क्या नाम है आपका? पूजा। तो पूजा की इक्विटी हुई, पूजा की नेटवर्थ में कैसे निकालूंगा कि आपके कितने एसेट्स हैं, क्या आपका चलो ये इतनी आपकी 4 बीघा ज़मीन है आपकी, और ये 500 गज का प्लॉट है, तो ये 4 करोड़ के एसेट्स हो गए, और आपके ऊपर 2 करोड़ का लोन चल रहा है, होम लोन आपने EMI भरवा लिया है ना, तो ये आपने 4 करोड़ मैंने 2 करोड़ किया, आपका 2 करोड़ आपकी नेटवर्थ मिल गई, वही इक्विटी होती है कंपनी की। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो डेट मतलब कर्जा डिवाइड बाई इक्विटी। तो आपके केस में डेट टू इक्विटी आपकी कितनी हुई? 2 करोड़ जो कि लोन था, डिवाइडेड बाई आपकी इक्विटी भी 2 करोड़ है, यानी कि आपकी डेट टू इक्विटी 100% परसेंटेज में निकाला है। ये होती है डेट टू इक्विटी। ये कम होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जितनी कम है इसका मतलब उतना कम कर्जा है कंपनी के पास, उतनी अच्छी बात है। अब ये काफ़ी शॉर्ट में बताया था, इतनी सारी अगर आपको माथा अच्छी नहीं करनी तो कितनी 10 साल में कितनी ग्रोथ है? सेल्स ग्रोथ 0%, 5 साल में 8%, 3 साल में 15%। TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स।